सामने डिस्को इसको चल रहा है, बड़ा अजीब माहौल है भाई। मौलवी आए हुए हैं और इनको शर्म नहीं आ रही। लबनान में आजकल हालात इंतहाई ख़राब हैं। अवाम और हुकूमत आमने सामने हैं। अवाम तब्दीली चाहती है और हुकूमत नए इलेक्शन करवा कर सिर्फ चेहरे तब्दील कर देती है। इस सब के बावजूद बैरूत शहर की रातें इंतहाई शर्मनाक हैं। इसलिए नहीं कि यहाँ डांस पार्टियाँ होती हैं, बल्कि इसलिए कि जिस मुल्क और जिन हालात में रातों को मौज मस्ती होती है वो किसी तौर पर एक ज़िंदा मुआशरे में तस्वुर नहीं किया जा सकता। एक तरफ लबनान की गिरती मईशत, इसराइल के रोज़ रोज़ हमले, शामी औरतों का बैरूत शहर में बेयार और मददगार सड़कों पर पड़े रहना, और दूसरी तरफ हालात से बेपरवाह होकर बैरूत के बासियों का रातें रंगीन करना। You go to the Middle East, you find out that Lebanon is the place to go. Did you go to Lebanon? That's the party place, isn't it? That's where everybody goes. That's their Vegas. And everybody kept telling me before I went to Lebanon, they were like, "Oh, Russell, when you go to Lebanon, it's party. It's best party you'll ever have." Best what? Best party. I don't know what a party is, but I'm going to trust you on this one. And let me tell you something. It was the best time I ever had. It was like in Lebanon. It was crazy. Like the shit. Like it's not even like wow, they were just nuts. It was just like a good vibe. It was like a fun time. Went to Lebanon. Lebanese in the house. Biggest party place in the world. These guys live life. Carpe diem. That's what they do. They live. It's a great place. Go check it out. Because the problem is, see, they've been in like some kind of conflict for the past 50 years. War all the time. So they just live like it's like going like last day on earth. We're partying. I swear, in Lebanon, we party. Always. Like last year when I went, they had no president. And usually most countries, if you have no president, you would shut it down till you elect a president, and then life goes on. Not in Lebanon. I was in Beirut, I go, Habibi, I don't know who's your president. He goes, Habibi, we don't have a president. But tonight, we party. बैरूत का नौजवान या तो कपड़े पहनकर सड़कों पर मुजाहरे करता है या फिर कपड़े उतार कर क्लबों में दंगे करता है। इस बेहिसी में क्या मुस्लिम, क्या ईसाई, क्या शिया, क्या सुन्नी, सब बराबर के शरीक हैं। This is what makes Lebanon very special, because there's no planning, so we try to have as much pleasure and fun as possible, as if there's no tomorrow. They call this place, perhaps obviously, white. And this is the calm before the storm. Anytime now, the doors will open, and tonight, like every other night, this place will enter the battle of the rooftops of Beirut. There may be fewer tourists here because of the political instability, but worry not, the Beirutis party on. The clubs thrive in the face of political instability. Millions of dollars are spent on new creations. Take this one, Pier 7. It's the new kid on the block. Welcome to Beirut. I love this city. I think it's a legacy more than just a trend. Beirut, before the civil war in '75, was what we call the Switzerland of the Middle East. After the war, it's coming back. I think it's a legacy of a very cosmopolitan city. मैं इस वीडियो में दज्जाल या फ्रीमेसन का मंजर नहीं बेचना चाहता, क्योंकि वो मंजर तो हकीकत टीवी वाला सबसे अच्छा बेचता है। ना ही इस वीडियो में लिबरल्स पर तनकीद करके फुटेज ज़ाया करना चाहता हूँ। इस वीडियो में सिर्फ ये बताने की कोशिश करना चाहता हूँ कि मेरी और आपकी बेहिसी का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं, कहीं हमारी बेहिसी भी हमें न ले डूबे। हाँ, ये इधर अभी मैं ज़रा जा रहा हूँ बाहर मोटर गश्त करने। आज होटल बदलाया है, मुझे खमरा में ही है, लेकिन होटल वो दूसरा ज़रा मज़े का नहीं था। हमने कहा यार बदल लो।
वो कंपनी वालों ने अभी दिया, ज़रा बड़ा अच्छा होटल है, 4 स्टार है। अभी हम जा रहे हैं, ज़रा खाना खाया बहुत तो मटर गश्त करेंगे तो जो है खाना भी हज़म हो जाएगा। गेटअप भी बदला है, रात का टाइम है, ख़तरनाक बंदे हैं तो गेटअप बदलाया है ताकि जो है खैर खैरियत से वापस आ जाए। सामने डिस्को चल रहा है, बड़ा अजीब माहौल है भाई। मौलवी आए हुए और इनको शर्म नहीं आ रही। डिस्को है और ये क्या है, हालात खैर। बिजली लाइट गई है भाई, लोड शेडिंग भी हो रही है और चल भी रहा है, बारिश भी हो रही है, लोड शेडिंग भी हो रही है। तो यार इधर एक मैंने उसकी दुकान देखी थी, मोबाइल वाली दुकानें देखी हैं, कार्ड लेना है। कार्ड ख़त्म हो गया। ये इस तरह की मोटरसाइकिलें पूरे शहर में हैं। स्कूटियाँ जो होती हैं ना, स्कूटियाँ, वो स्कूटी ये 70 और 125 अभी तक मैंने नहीं देखी, कोई हैवी बाइक नहीं देखी। यही स्कूटियाँ पूरे शहर में चल रही हैं। इनके ऊपर उन्होंने शेड सा बनाया हुआ है प्लास्टिक का, बारिश वारिश से बचने के लिए। और पूरे शहर में अक्सर डिलीवरी वाले वो इसके ऊपर डिलीवरियाँ करते रहते हैं, पिज़्ज़े वीज़े और दूसरी तीसरी चीज़ें। तो पूरे शहर में ये स्कूटियाँ चल रही हैं। ये कैफ़े हमरा, ये जो हम जहाँ पर हैं ये हमरा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हमरा। ये जो है बैरूत का एक पोश एरिया में से है। सबसे पोश तो वो था जो दूसरी वीडियो दिखाई थी उधर डाउनटाउन की। उसके बाद ये हमरा जो है ये भी पोश एरिया है। इसके अंदर सारे ब्रांड्स और होटल, इस तरह के बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। शेवलेट, एक काली शेवलेट कल से घूम रही है, एक ही शेवलेट है, पता नहीं कौन है लेके घूम रहा है। बाकी लैम्बोर्गिनी भी देखी है मैंने, मर्सिडीज़ तो हैं काफ़ी, और रिक्शा भी देखा अभी। मतलब मिक्स सिस्टम है, आपको खटारा गाड़ियाँ भी मिलेंगी और लग्जरी कार्स, सुपर कार्स भी मिलेंगी। तो ज़बरदस्त इलाका है हमरा डिस्ट्रिक्ट, मशहूर। अच्छा जी, अभी हम साहिल पर आ गए हैं। 10 मिनट की वॉक है हमारे होटल से साहिल तक। तो हालात बहुत ख़राब हैं यार बैरूत के। मतलब कि नौजवान नस्ल जो है ना, बिल्कुल रास्ते से हटी हुई है। नमाज को बिल्कुल कोई जानता नहीं नौजवान नस्ल में। नमाज़ों का बुरा हाल है, चूँकि ईसाई भी हैं काफ़ी हद तक। यहाँ पर तकरीबन आधी आबादी ईसाइयों की है, उस वजह से भी कह सकते हैं कि फहाशी वगैरह ज़्यादा है। लेकिन मुसलमानों का भी कोई हाल नहीं है। जुनूब में उधर है हिज़्बुल्लाह वाले, वहाँ एयरपोर्ट से आते हुए उधर की हमने बहुत तस्वीरें देखी थी रोड के ऊपर। ये जो वो लगे होते हैं ना साइन बोर्ड, उस पर कासिम सुलेमानी और हसन नसरुल्लाह की। तो हो सकता है हसन नसरुल्लाह ने साउथ में कुछ हालात कंट्रोल किए हों। बैरूत के अंदर तो बहुत बुरा हाल है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अम्मान में भी मज़ा नहीं था, नमाज और उसका इतना एहतमाम नहीं था, लेकिन वहाँ जमातें आती रहती हैं। एक जमात से हम मिले, मरकज़ भी गए थे अम्मान में हम, तबलीगी मरकज़। तो वहाँ फिर थोड़ा अच्छा है यहाँ से। यहाँ तो वो तबलीगी जमात का अभी तक हमें कोई इल्म नहीं हुआ, वीज़े भी शायद नहीं मिलते उनको, तो अल्लाह ही रहम करे। तो बैरूत में आप घूमेंगे तो आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि इनकी या हालात ठीक नहीं है या अंदरूनी हालात ठीक नहीं है या कोई ईरान इसके साथ, इसराइल के साथ कोई टसल चल रही है। जिस तरह से रोडों पर लड़कियां हैं और लड़के हैं, तो बिल्कुल आपको कोई एहसास नहीं होगा। बस अल्लाह ताला हालात पर रहम करे। ओहो हो, समंदर बड़ा बिखरा हुआ है। अभी हम रात को आए, शाम को आ रहे थे तो वो उधर
दूसरी रोड के दूसरी तरफ तक जो है लहरें आ रही थी, लग लग के पानी वहाँ तक आ रहा था। तो समुंदर बड़ा भिपरा हुआ है। तो चलो बस अभी ज़रा मटर गैस करते हैं, फिर मिलते हैं।